Welcome, Klaus. Welcome. Today we are going to discuss an important topic regarding political science, that is rule of law. Rule of law. In this lecture, we will discuss uh, some principle regarding rule of law. Generally, we will discuss the topic, what the rule of law is or what is the rule of law. As we all know, we have listened this word many times in our, and we use this in our daily discussions. But in today's lecture, we would like to discover what it is, and like to know how it is being used. So the rule of law does not have a precise definition, and its meaning and can vary between different nations and legal traditions. So generally, however, it can be understood as a legal political regime under which the law restrains the government by promoting certain liberties and creating order and predictability regarding how a country functions. In the most basic sense, the rule of law is a system that attempts to protect the rights of citizens from a arbitrary and abusive use of government power. शहरियों को प्रोटेक्शन हासिल होती है, सिटीजन्स को उनके राइट्स को कोई भी उनके 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 हकूक जो है वो गजब ना कर सके, उनको उसको उनसे छीन ना सके कोई भी ऐसी तरीकाकार। तो डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको इस तरह से डिफाइन करती है कि द अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ इन सोसाइटी स्पेशली व्हेन viewed as a constraint on individual and institutional behavior. Hence, the principle whereby all members of a society, including those in government, are considered equally subject to publicly disclosed legal codes and processes. यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया है ना कि द अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ इन सोसाइटी, इसकी इसका इन्फ्लुएंस, इसकी अथॉरिटी स्पेशली व्हेन व्यूड एज अ कांस्टेंट ऑन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर. So the principle whereby all members of society, including those in government, are considered equally subject to publicly disclosed legal codes and processes. Uh, रूल ऑफ लॉ को मजीद थोड़ा सा देखते हैं कि द रूल ऑफ लॉ द मैकेनिज्म, प्रोसेस, इंस्टीट्यूशन, प्रैक्टिस और नॉर्म दैट सपोर्ट्स द इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन, यानी ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई इदारा, ऐसी कोई प्रैक्टिस, ऐसी कोई नाम जो कि इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स को, यानी जो सपोर्ट करती है इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ, secures a non-arbitrary form of government, or and more generally prevents the arbitrary use of power. यानी गलत इस्तेमाल को, गलत चीज़ को डिस्करेज किया जाता है, उसको रास्ता रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है और सिक्योर किया जाता है नॉन आर्बिट्रेरी जो तरीके हैं उनको। तो आर्बिट्रेरीनेस इज टिपिकल ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्पोटिज्म, जैसे कि एब्सोल्यूटिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, ये सारे. So despotic governments include even highly institutionalized forms of rule in which the entity at the apex of the power structure, such as king या जनता है or party committee है, is capable of acting without the constraint of law when it wishes to do so. अगर कंसेंट ऑफ द पीपल नहीं है, लोगों की विशेष नहीं है, चाहे वो किंग है, पार्टी है, जनता है, जो भी हैं, तो वो उनके वो रूल ऑफ लॉ वहाँ नहीं है, वो ऐसा नहीं है और लोगों को प्रॉब्लम है। रूल ऑफ लॉ को मज़ीद ideas about the rule of law have been central to political and legal thoughts since at least the 4th century BCE, uh, before the Christ era. जब एरिस्टोटल ने फर्क किया कि द रूल ऑफ लॉ फ्रॉम डेट ऑफ एन एनी इंडिविजुअल. In 18th century, the French political philosopher Montesquieu elaborated a doctrine of the rule of law that contrasted the legitimate authority of monarchs with the caprice of despots.
So it has since profoundly influenced Western liberal thought. अब हम आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ के रूल ऑफ लॉ में जो एलिमेंट्स थे उनका जिक्र करते हैं तो अमेरिकन लीगल स्कॉलर हैं लॉन फुलर उनकी एक किताब है द मोरालिटी ऑफ लॉ इसने 8 एलिमेंट आइडेंटिफाई किए हैं जो कि which have been recognized as necessary for a society aspiring to institute the rule of law. फुलर फुलर ने कुछ इस अंदाज से किए हैं हम इन्हें थोड़ा सा देखते हैं। नंबर 1 वो कहता है कि लॉज मस्ट एग्जिस्ट एंड दोज लॉज शुड बी ओबेड बाय ऑल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। लॉज मस्ट एग्जिस्ट लॉज होने चाहिए एंड दोज लॉज शुड बी ओबेड बाय ऑल और तमाम लोग उनको ओबे करें इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उसमें शामिल हैं। वो कहता है कि लॉज मस्ट बी पब्लिश लॉज पब्लिश्ड होने चाहिए लॉज सामने आने चाहिए laws must be prospective in nature so that the effect of the law may only take place after the law has been passed. यानी laws must be prospective in nature so that effect of law जो है वो important है may only take place after the law has been passed. मिसाल के तौर पर court cannot convict a person of a crime committed before a criminal statute prohibiting the conduct was passed. ठीक है अच्छा नंबर 4 laws should be written with reasonable clarity to avoid unfair enforcement यानी ऐसा ना हो कि उसमें clarity होनी चाहिए और उसको enforcement में यानी अनफेयर यानी अनजस्टिस से इस तरह किसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए रिटर्न होना चाहिए वाज़ेह होना चाहिए क्लियर होना चाहिए लॉ मस्ट अवॉइड कंट्राडिक्शन यानी लॉ के ही अंदर कंट्राडिक्शन ना हो कि लॉ अपने आप को या एक लॉ दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा हो एक प्रॉब्लम सी बन रही हो हाँ, ठीक है जी तो कंट्राडिक्शन या एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए लॉ मस्ट नॉट कमांड द इम्पॉसिबल ठीक है लॉ मस्ट स्टे कांस्टेंट थ्रू द टाइम to allow the formalization of rules however law also must allow for timely revision when the underlying social and political circumstances have changed ठीक है जी लॉ मस्ट अलो फॉर टाइमली रिवीजन रिवीजन भी होनी चाहिए उसमें उसमें चेंजेस आती रहती हैं व्हेन द अंडरलाइंग सोशल और पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस जाहिर है सारे ज़मानों में एक नहीं रहती तो विद द पैसेज ऑफ टाइम विद सर्कमस्टेंसेस चेंज हैं पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस सोशल एंड सर्कमस्टेंसेस सोसाइटीज़ के अंदर चेंज होते रहते हैं तो उसके एतबार से उसमें रिवीजन वगैरह होनी चाहिए उसकी फॉर्मलाइजेशन के एतबार से और 8वां एलिमेंट वो है आखिरी कि ऑफिशियल एक्शन शुड बी कंसिस्टेंट विद द डिक्लेयर्ड रूल यानी अगर कोई ऐसा है तो उसमें ऑफिशियल साइड कोई एक्शन कंसिस्टेंटली उसमें होना चाहिए उसके डिक्लेयर्ड रूल्स के हवाले से अब हम आ जाते हैं इसके प्रिंसिपल्स की तरफ इसके प्रिंसिपल ये हैं द रूल ऑफ लॉ इज हाउ सिटीजंस आर गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ The rule of law क्या है? Is how citizens are governed by the rule of law and not by the power of others. यानी पावर से नहीं बल्कि कानून से गवर्न किया जाए सो द लॉ इज अ लीगल इस तरह से क्या होता है कानून एक लीगल प्रोपोजिशन बनता है दैट ट्रीट्स एवरीवन इक्वली इन द सेम सिचुएशन यानी सिचुएशन एक ही है और सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है लॉ में so law is needed both for individuals as a part of the state as people who have rights and obligations तो सबके लिए बराबर है और सबके लिए इक्वल है और ऐसा है कि इक्वली डील करता है ठीक है जी theoretically and practically law as a discipline should have an analysis model and be able to solve various problems because this is the view that law has flexibility in regulating life ठीक है जी लॉ लॉ जिंदगी गुजारने के लिए लॉ जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए नहीं है तो इसमें लॉ हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ के एतबार से लाइफ गुजारने के लिए तो ये मसाइल को हल भी करता है एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकली थियोरेटिकली और ज़िंदगी आसान बनाई जा होती है इससे। One of legal experts from England, A.V.
Massey in 19th century argued that law is more inclined to स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी लॉ का ताल्लुक वो कहता है कि रियासत की इंतजामी मामलात से ज़्यादा ताल्लुक रखता है और द मोस्ट वेल नोन कंसेप्शन ऑफ द रूल ऑफ लॉ कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स है और उसके मुताबिक जो इस कंसेप्ट के से जो उसके मुताबिक जो रूल ऑफ लॉ के तीन वो कहते हैं कि एलिमेंट्स निकलते हैं वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ ओवर आर्बिट्रेरी पावर ठीक है ना द एब्सोल्यूट सुपरमेसी ऑफ द लॉ यानी लॉ की एब्सोल्यूट सुपरमेसी नहीं चाहिए और आर्बिट्रेरी पावर कोई उसका मिसयूज ना करे आर्बिट्ररली ना करे उसको इंक्लूड्स एक्सटेंसिव पावर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ठीक है जी फिर एवरी सिटीजन इज अ सब्जेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ द स्टेट हर जो शहरी है वो सब्जेक्ट ऑफ द लॉ है ठीक है विच इज कैरिड आउट इन जनरल कोर्ट जो उसमें आता है और राइट्स आर नॉट बेस्ड ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलाइन स्टेटमेंट बट द एक्चुअल डिसीजन ऑफ कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल उस पर नहीं होने चाहिए बल्कि एक्चुअल एक्चुअल डिसीजन ऑफ द कोर्ट के हवाले से हकूक बेस करते हैं ठीक है जी अच्छा फिर मजीद एक जगह पर 5 प्रिंसिपल इसके डिफाइन किए हुए हैं रूल ऑफ लॉ के हवाले से कि प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी यानी रूल ऑफ लॉ लीगल है और जनरली तमाम लोगों पर एप्लीकेबल है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसका फ़ायदा ये है कि ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट कॉशन कॉशन टू इंश्योर लॉ एनफोर्समेंट ठीक है द मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट कॉशन टू इंश्योर लॉ एनफोर्समेंट यानी हुकूमत को ये मोनोपोली देता है कि वो लॉ की इन्फोर्समेंट को इंश्योर बनाए ठीक है अ, एक इदारा है गवर्नमेंट और सेफ्टी और प्रोटेक्शन के हवाले से काम करता है लोगों की राइट्स और उनको ड्यूटीज का भी समझाता है तो उसको एक तरह से ये इख्तियार देता है कि ये इन्फोर्समेंट के हवाले से ये काम इंश्योर करवाता है उसको oversight by any independent judge in matters of the government implementing and enforcing the rule of law. यानी oversight करता है by an independent judge in matters of government implementing and enforcing the rule of law. Honesty and open to the public. लोगों को इस पर अंधाधुंध यकीन होता है एतमाद होता है और पब्लिकली ओपन क्लियर कट बात होती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है इसमें ऑनेस्टी है और ओपननेस है पब्लिकली तो ये उसूल होने चाहिए रूल ऑफ लॉ में और जो नज़र आता है और लोगों को इसी से ही स्टेट का सिस्टम जो है वो फ्रूटफुली और स्मूथली चलता रहता है so hope students you have understand today's very brief discussion regarding the rule of law ये तो बड़ा डिबेटेबल है मैंने जनरल डिस्कशन थोड़ी सी आपके साथ शेयर की है अब एक क्वेश्चन है इसको हम सेपरेटली देखेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से है और बाकी रियासतों में ये रूल ऑफ लॉ की किस तरह से एप्लीकेबिलिटी है ठीक है सो थैंक यू वेरी मच